Dear students, once again, a very special welcome to all of you in the class of Science Class 10 Chemistry portion. Yesterday, what we did, we have completed the first portion of carbon and its compound, in which we gave you a brief introduction of what actually carbon is, where it lies in the periodic table, why is it not sharing or accepting electrons, and in more detail, why carbon is forming a large number of compounds. So in today's, and at the last, I'll already give you a nutshell of the types of hydrocarbons. We classified hydrocarbons as aliphatic, and after that closed-chain hydrocarbons, linear hydrocarbons, and after that saturated, unsaturated. Today we are going to give them a little bit more detail, and we are going to name hydrocarbons from today onward. See, so let's start. In hydrocarbon parts, we already told you that aliphatic hydrocarbon has two parts, saturated and unsaturated hydrocarbons. So how you are going to name them, how you are going to classify them, let's start the topic. See, before naming a carbon compound, especially a hydrocarbon, what you do, there used to be carbon as your parent chain, okay? So when there is number of carbon is 1, we used to write the prefix as meth, METH, meth. When there is number of carbon is 2, eth. When the number of carbon is 3, prop. When the number of carbon is 4, but. When the number of carbon is 5, sorry, let me erase it a little bit and write it again. Pent, PENT, 6, hex, 7, hept, 8, oct, 9, non, 10, dec. This is the prefix you have to use while naming that hydrocarbon. Okay? Just remember it. When there is when the number of carbon is 1, you have to write meth as a prefix. 2, eth, 3, prop, 4, but, 5, pent, 6, hex, 7, hept, 8, oct, 9, non, and dec, 10. Now, I already told you saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. What is the difference between these two? See, this is saturated hydrocarbon. Why saturated? And these two sorry, 1, 2, 3, 4, okay, and this one, C triple bond, C, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. See, all those hydrocarbons which have only single bond between the carbon and between carbon and hydrogen, all those hydrocarbons we call as saturated hydrocarbon. See, why saturated? Because all the place of hydrogens are already filled. कोई हाइड्रोजन अभी खाली नहीं है, हाइड्रोजन का जगह कोई खाली नहीं है. उससे क्या होगा, यहाँ पे आप दोबारा हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन का ऑलरेडी वैलेंसी 4 पूरा हो चुका है और हाइड्रोजन का भी कोई जगह यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. दिस इज सैचुरेटेड. हम क्या करते थे सॉल्यूशन में, हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते थे. पहले क्या करता था, पानी में आप शुगर ऐड करते थे तो वो डिजोल्व होता था, फिर से शुगर ऐड करते थे, फिर से डिजोल्व होता था. तो एक स्टेज ऐसा आता था जहां पहुंच के आपके पानी में दोबारा शुगर डिजोल्व होना खत्म हो जाता था. क्यों? क्योंकि जो भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थे लिक्विड के बीच में वो तो ऑलरेडी शुगर ने फिल कर लिया. आप कहां डिजोल्व होंगे, कौन से स्पेस में जाएंगे? उस स्टेज को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहता था. वैसा यहां भी आप देख सकते हो. इस केस में देख लीजिए अनसैचुरेटेड में क्या हो रहा है. अनसैचुरेटेड में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक्चुअल में यहाँ 3 था, ठीक है सर, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड था इसीलिए 2 है. देखो कार्बन का वैलेंसी हमेशा 4 आपको पूरा करना है. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसीलिए यहाँ एक हाइड्रोजन कम हो गया. अब यहाँ एक हाइड्रोजन आ तो सकता है ना, अभी भी है इसमें अनसैचुरेशन, इसीलिए ये वाला जिसमें डबल बॉन्ड हो और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे. एंड ऑल दोस कंपाउंड्स व्हिच हैव ऑल द सिंगल बॉन्ड्स इन देम बिटवीन कार्बन कार्बन और बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, उन सारे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे सर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. एंड डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिनमें होंगे और जहां देखो हाइड्रोजन जा सकते हैं और उनको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे सर. अब नेमिंग कैसे देंगे हम इनको देख लीजिए.
कार्बन का मैं यहां लिखूंगा, कार्बन का नंबर, इधर मैं अल्केन का लिखूंगा। पहले मैं अल्केन का ही कर दूं, वो सही रहेगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5, बाकी हम एक एक करके रिलेट करके करेंगे। इसको सफिक्स में हम हमेशा एन लगाएंगे, ANE। जब भी सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड्स आपको मिलेंगे तो लास्ट में ANE एन लिखना है आपको। देखो पहला मैं लिखूंगा CH4, है ना सर, CH4 है। नंबर ऑफ कार्बन कितना है? नंबर ऑफ कार्बन 1 है सर इसमें। तो देख लीजिए आप यहां पे, जब भी नंबर ऑफ कार्बन 1 होगा तब आपको क्या लिखना है? पहले मिथ लिखना है। नंबर ऑफ कार्बन जब भी 1 होगा तब आपको क्या लिखना है? मिथ लिखना है। तो मैं मिथ लिखूंगा पहले, फिर सारे सिंगल बॉन्ड्स है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं, कोई दूसरा इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में? ANEN लिखोगे। तो इसका नाम क्या हो गया? मीथेन हो गया इसका नाम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट कार्बन, कार्बन नंबर 2, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन 2 इसमें है। इसको थोड़ा इरेज कर दूं। सी, इसमें 2 कार्बन है तो वैलेंसी पूरा करते जाओ। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है सर, दिस इज हाइड्रोजन। नाउ सी, कितना है नंबर ऑफ कार्बन इसमें, इस कंपाउंड में? 2 है। तो देख लीजिए फिर पीछे जाके, जब भी 2 कार्बन आपको होगा तब क्या लिखना है? पहले इथ लिखना है। तो मैं इथ तो लिख लूंगा पहले, ETH इथ, लेकिन सारे सिंगल बॉन्ड है ना सर, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो आप उसके बाद आपको हमेशा क्या लिखना है? ANEN लिखना है। तो इसका नाम हो गया ईथेन। 3 कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं, सारे सिंगल होंगे तो प्रोपेन, फिर 4 का ब्यूटेन, फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन, फिर हेप्टेन, फिर ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, वो सारा ऐसे आपको चलाना है। ठीक, ये सारा सर। फिर क्या इसमें देखो, पहले में 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो इसको पता करने का कोई तरीका है सर? तो ऑब्वियसली है, अल्केन का एक जनरल फार्मूला रहता है हमारे पास से, हम अल्केन की बात कर रहे हैं। अल्केन का एक जनरल फार्मूला रहता है, मैं थोड़ा इसको थोड़ा बोल्ड कर दूं बेटा, CnH2n+2। सी, N मीन्स नंबर ऑफ कार्बन। सी, मैं यहां एक कर लूं ऐसे 2, अगर मैं यहां 2 कार्बन रखता, 2 कार्बन में यहां रखता तो C2, यहां N का 2 वैल्यू रहेगा तो 2 2 4, 4 + 2 6, H हमेशा 6 रहना चाहिए। इज इट? देख लो आप खुद, ऐसे हमने बनाया था, H H H H H H। नाउ दिस इज ईथेन। 1 2 2 कार्बन को हम इथ बोलते थे, सारे सिंगल बॉन्ड है, ईथेन है। तो ये जनरल फार्मूला आपको सारा कुछ बता देगा सर। देख लो ऐसे, दिस जनरल फार्मूला इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स। ये आपको क्या बताएगा कि अगर यहां, सॉरी इस पे एक 4 ऐसे रह गया, आपको कंफ्यूज हो जाएगा। देख लो, C अगर मैं 4 रखूं, C अगर मैं यहां 4 रखता तो H कितना होना चाहिए? 2 4 जा 8, 8 + 2 10, H 10 होना चाहिए हमेशा। ठीक, व्हाट दिस, इस कंपाउंड को आप क्या बोलोगे? 4 कार्बन है तो क्या बोलते थे? ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हुआ? ब्यूटेन। इसको नाम हम क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। इसको आप स्ट्रक्चरली भी बना सकते हो। ब्यूटेन को कैसे बनाओगे? चलो हम नेक्स्ट में बनाएंगे आपको। सी, व्हाट ब्यूटेन इज? C, सॉरी C C C C। ये सारे हाइड्रोजन हैं, याद रखना, ये सारे हाइड्रोजन हैं, ये सारे हाइड्रोजन हैं। से हमने क्या बोला था? CnH2n+2। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ व्हाट? अल्केन्स। तो C2H2 4 + 2 6, C2 सॉरी C4, वी आर टेकिंग 4 कार्बन हियर ना, C4, तो 2 2 4, 4 + 2, sorry 2 4 that 4 2 10, C2H10. Is it? See, N is number of carbon. Number of carbon is 1 2 3 4. We are taking 4 carbon. So what will be the number of hydrogen? 2 4s are 8, 8 + 2 10. This is the formula now. We can relate it here. H will be obviously 10 from the general formula. So let's count. 4 is the number of carbon. Now let's count the number of hydrogen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. All these are alkanes, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे, बीच में कोई ऐसे डबल बॉन्ड नहीं होगा। हम उनको क्या बोलेंगे? अल्केन्स बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे? अल्केन्स बोलेंगे। ठीक, उनका जनरल फार्मूला याद रखिएगा, CnH2n+2। किसी ने आपको बताया सर 7 कार्बन वाले अल्केन में कितना हाइड्रोजन होगा, तो लगा लीजिए 2 7 14, 14 2 16। दिस विल बी द हेप्टेन। ओके, सो नाउ आफ्टर अल्केन वी आर गोइंग टुवर्ड्स अल्कीन।
अल्कीन। अल्कीन में क्या होगा सर? अल्कीन में हमेशा आपको एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड मिलेंगे। कैसे? से किसी न किसी जगह आपको डबल बॉन्ड मिलेंगे, 101% आपको डबल बॉन्ड मिलेंगे। उन सारे कंपाउंड्स को आपको क्या बोलना है? हाइड्रोकार्बन तो है ही, जनरल हाइड्रोकार्बन, अल्कीन आप उनको कहेंगे सर। आप हाइड्रोजन कैसे आप ऐड करोगे? इसमें ऑलरेडी 2 वैलेंसी है कार्बन का, तो 3 एंड 4, 4 वैलेंसी आपको, यू हैव टू सेटिस्फाई 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन एवरी टाइम। नाउ 1 2 3 4, 1 is here, 2 3 4, carbon has a valency of 4, you have to satisfy that valency. हाइड्रोजन का 2 है because it's always want to become divalent. Now let's see, सर इसका भी कोई जनरल फार्मूला होता है? Yes, obviously, CnH2n, CnH2n. How? Cn, now 1 2 3, 3 carbon, so what should be the number of hydrogen? 2n. We have taken n as 3, so what should be hydrogen? 2 3s are 6, C3H6. Let's now count 1 2 3, 3 carbon, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6। सर इसमें एक हाइड्रोजन तो कम हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या आया आपका? डबल बॉन्ड आया। मैंने पहले बताया था जहां डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, यू ऑलरेडी टोल्ड देम इज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, उनको आप सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल हम लेंगे सर, 4 कार्बन का। 4 कार्बन का आप एग्जांपल लीजिए, सॉरी, ठीक, एक जगह आप डबल बॉन्ड डाल दीजिए सर, किसी भी जगह। अब देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं भी लगा सकते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मैंने बनाया सर। नाम क्या देंगे सर आप इसको? 4 कार्बन को हम क्या बोलते थे? ब्यूट। याद होगा आपको, पीछे मैंने आपको बताया था 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूट। सही है, देख लीजिए यहाँ, हाँ, 4 कार्बन जब भी होगा तब आप क्या लिखते थे? ब्यूट। ये याद रखिएगा, यही टेबुलेट करके आप इसको याद रख लीजिएगा बेटा, आपको बहुत काम आएगा ये ब्यूट। नाउ सी, इसमें तो डबल बॉन्ड है सर। अल्कीन्स में हमेशा लास्ट में आपको ईन लगाना है। अल्केन में क्या लगाते थे? एन। अल्कीन में हमेशा आपको ईन लगाना है। अब 4 कार्बन है तो क्या होगा? ब्यूट, और ईन तो साथ में लगेगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, तो ब्यूटीन। अगर 5 कार्बन होता तो आप क्या करते? 5 कार्बन होगा तो आप क्या करते? 1 2 3 4 5 पेंट आप बोलते, लेकिन डबल बॉन्ड है तो पेंटीन बोलते। अगर किसी जगह डबल बॉन्ड होता, 6 कार्बन होता, तो आप क्या बोलते? हेक्सीन। 7 होता है हेप्टीन, 8 होता ऑक्टीन। ठीक है सर, दिस वाज ब्यूटीन। अगर आपको कोई बोलेगा सर मुझे आप पेंटीन का लिख लीजिए, तो क्या करोगे आप? सर पेंट तो 5 कार्बन को बोलेंगे, लेकिन लास्ट में क्या बोल रहा है? ईन बोल रहा है सर, पेंटीन। सर ईन तो तभी होगा जब कोई अल्कीन हो, जब कोई डबल बॉन्ड हो, तो किसी जगह डबल बॉन्ड डाल दीजिए ऐसे, फिर वैलेंसी पूरा करते जाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। दिस इज कॉल्ड पेंटीन। व्हाई? बिकॉज देयर आर 1 2 3 4 5 कार्बन। 5 कार्बन को हम क्या बोलते थे सर? पेंट। तो हमने पेंट लगा लिया। अब ईन है तो किसी जगह डबल बॉन्ड होगा, तो है यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसीलिए हम इस कंपाउंड को क्या नाम देंगे? पेंटीन। Please try heptene, hexene, octene at your home. This is for your home assignment or homework. It will be much better for you. If still there is confusion, you are not unable to conceive what we are saying or what we are explaining over here in the name of organic compounds, आप please एक काम कर लीजिएगा, इस नंबर पे आप हमें WhatsApp कर दीजिएगा. We are going to clear all your questions. 8491 957 847. This is the helpline number for your class 10 chemistry. Here we are going to clear all your concepts regarding organic compounds etc. carbon and its compound. अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रहता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेरीज भेज सकते हैं. थैंक यू सो मच. उसके बाद हमारे लास्ट में रहता है बेटा, हमने बोला अल्केन, अल्कीन, अल्काइन. तीसरा है हमारा अल्काइन. ये भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है सर. हमने बोला अल्केन, अल्कीन, अल्काइन. अल्केन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन और अल्काइन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. नाउ लेट्स सी, अल्काइन में क्या होगा? किसी न किसी जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा, और लास्ट में हम क्या दे देंगे? उसका नाम के पीछे आयन डाल देंगे, YNE. ठीक. सी फॉर एग्जाम्पल हियर इज इट, ट्रिपल बॉन्ड C. देख लीजिए सर, यहाँ 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इस पे हम नहीं लगाएंगे, इस पे 1 लगाएंगे. सर इसका भी क्या कोई जनरल फार्मूला है अल्काइंस का? यस ऑब्वियसली, CnH2n -2.
CnH2n minus 2. Cn number of carbon whatever you are keeping over there, हमने यहाँ पे 3 कार्बन रखा तो C3H 2 3 is 6 6 minus 2 C3H4. See Cn we have 3 carbon, sorry 3 1 2 3 carbon, so n value is 3 over here, so 2 3 is 6 6 minus 2 4, H should be obviously be 4. अब गिनिए आप 1 2 3 कार्बन तो है ही, हाइड्रोजन एस पर फॉर्मूला हमें 4 आ रहा है तो 1 2 3 4. सर कम होते क्यों जा रहे हैं? अल्केन में पूरा था, अल्कीन में उससे थोड़ा हाइड्रोजन कम हो गया, अल्काइन में बहुत कम हो गया. इसका रीजन यही है. इसमें देख लीजिए कार्बन का वैलेंसी ऑलरेडी 3 था यहाँ पे, अगर मैं 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड करता तब क्या हो जाता सर? तब इसका वैलेंसी 1 2 3 4 5 हो जाता. दिस इज रॉन्ग. कार्बन कैन नॉट एक्सेप्ट 5 वैलेंसी. इसीलिए मैंने क्या किया, इसीलिए हमने काम किया यहाँ पे सिर्फ, इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे 4 वैलेंसी कार्बन का सेटिस्फाई किया. यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4. कार्बन कैन एक्सेप्ट a total valency of 4. That's why it's forming tetravalent compounds. इसीलिए हम इसको tetravalent element भी कह रहा था. अल्काइन में देख लीजिए सर, मैं रिकैप कर रहा हूँ. अगर किसी जगह 6 होगा कार्बन तो हम क्या बोलते हैं हेक्स, और बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे हेक्स आइन, HEXYN, फिर बाद में लगा दोगे हेक्साइन. ठीक सर. हमने 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन सभी पढ़े एलिफैटिक में. पहले तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो गया. अल्केन्स सैचुरेटेड में आता है, अल्कीन्स और अल्काइंस अनसैचुरेटेड में आता है. अल्केन्स में CnH2n प्लस 2. हम एक बार दोबारा वापस जाना चाहेंगे. देख लीजिए ये अल्केन का क्या है, CnH2n प्लस 2. इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा सर? देख लीजिए, अगर कार्बन 4 होता तो 2 2 4 5 6 H, सॉरी 2 4 8 2 10. ऑब्वियसली हाइड्रोजन 10 होना चाहिए, इसको हम ब्यूटेन बोलते हैं. उसका जनरल फार्मूला है CnH2n प्लस 2. इसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा और नाम के लास्ट में हमेशा ANEN लगा देंगे. उसके बाद हमने क्या बोला, अल्कीन पे हम गए बेटा. अल्कीन में हमने बोला किसी न किसी जगह पक्का डबल बॉन्ड होगा आपको, किसी न किसी जगह पक्का डबल बॉन्ड होगा. ऐसे किसी न किसी जगह आपको डबल बॉन्ड होगा. उन सारे कंपाउंड्स को हम अल्कीन जनरल नाम लेंगे. जनरल फार्मूला है उसका CnH2n. देख लीजिए, अगर यहाँ 3 कार्बन हमने लिया तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 2 3 6 होना चाहिए. नेमिंग मैंने फिर से बोला, अल्केन में पहले कार्बन का रूट जो भी है वैसे नाम करना है. 1 होगा तो मिथ, 2 होगा तो इथ, फिर लास्ट में एन लगाना है. अल्कीन में हमेशा ईन लगाना है. 1 कार्बन होगा, सॉरी 1 तो नहीं, 2 कार्बन होगा तो इथीन, 3 होगा प्रोपीन, 4 होगा ब्यूटीन. उसके बाद इन द लास्ट वी हैव अल्काइन. अल्काइन हैव अ जनरल फार्मूला ऑफ CnH2n minus 2. When we have 3 carbon over here, what should be the number of hydrogen? See, 2 3 is 6 6 minus 2 4. लेकिन नेमिंग कैसे करेंगे सर? जब भी ट्रिपल बॉन्ड होगा हम कैसे नेमिंग करेंगे? हेक्स तो लगाएगा, 6 कार्बन है तो हेक्स ही होगा. सॉरी 3 है ना, हाँ इसकी बात कर रहे हैं. 3 है तो प्रॉप होगा, प्रॉप. लेकिन बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हमेशा आयन लगाएंगे सर. ठीक. एक छोटा सा मैं रिकैप आपको करवा दूं. ये देख लीजिए, अल्केन जब भी होगा तो लास्ट में एन लगेगा, अल्कीन जब भी होगा तो ईन लगेगा, अल्काइन जब भी होगा तो आयन लगेगा. ठीक. अल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, अल्कीन में हमेशा डबल बॉन्ड होगा, और अल्काइन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होगा सर. ठीक. ऐसे जब भी सिंगल बॉन्ड होगा तो लास्ट में एन लगाना है. बाकी कार्बन जितना होगा मेथ इथ प्रॉप वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे. अल्कीन जब भी होगा तो लास्ट में ईन लगाना है, एंड अल्काइन जब भी होगा तब आपको नेमिंग के लास्ट में आयन लगाना है. अब आपको समझ आया होगा एक कार्बन को हम अल्केन क्यों बोल रहे, सॉरी मीथेन क्यों बोल रहे थे. 2 कार्बन वाले अल्केन को हम इथेन क्यों बोल रहे थे, 3 को प्रोपेन, 4 को ब्यूटेन क्यों बोल रहे थे. ठीक. दिस वॉज ऑल अबाउट नेमिंग हाइड्रोकार्बन. बहुत ज्यादा आसान है, एक बार इसको रिलेट करके आप देख लीजिए, उसके बाद आपको सारा डिटेल पता चलेगा. अब सर द नेक्स्ट वन इज इट ओनली कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा रहेगा? नो, दिस इज नॉट लाइक दैट. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करके आते हैं सर, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में क्या होंगे सर? साथ में आपके दूसरे, सॉरी देख लीजिए ऐसे,
ये था हमारा नॉर्मल, दो कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड है। दो कार्बन को हमने क्या बोला था, एथ, सारे नॉर्मल बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स है, तो हमने बोला था एन, दिस इज ईथेन। अब क्या होगा, इनमें से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम करके रिप्लेस कर जाते हैं बेटा। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, वन और मोर हाइड्रोजन यूज्ड टू गेट रिप्लेस्ड बाय सम एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। उन एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, जिसकी वजह से इस एंटायर कंपाउंड का प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाता है, उनको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और जो कंपाउंड्स बनेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको बनेंगे। कैसे, पहले मैं आपको बता दूं। देख लीजिए सर, अभी ये नॉर्मल एक ईथेन है, ठीक, मिथ इथ, लेकिन सारे सिंगल बॉन्ड है तो हमने ईथेन लगा दिया आप, ठीक है सर। नाउ व्हाट हैपेंस, यहां से क्लोरीन आ गया, उसने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया सर। इस हाइड्रोजन को क्या किया, उसने रिप्लेस कर दिया। कैसे, देख लीजिए, यहां पे हाइड्रोजन था ना, इसको निकाल के इसकी जगह क्लोरीन लग गया। तो मैं इसको इरेज कर दूं, ऐसे क्लोरीन आपका आ गया, तो इसने क्या किया, यहां पे अपना हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वो यहां पे आ गया। अब क्या ये दोबारा ईथेन कहा जाएगा, नहीं सर, नाउ द प्रॉपर्टी इज होली चेंज्ड। तो ऐसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो आके आपके कंपाउंड में दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, उसके बाद ये जो कंपाउंड, इसका सारा प्रॉपर्टी चेंज होंगे। दिस इज नॉट इथेन नाउ, दिस इज क्लोरोइथेन। सो दीज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स we call as functional group. So let's now discuss about functional group. This is functional group बेटा। मैंने पहले आपको बोला कि atoms, if you are going to define it, if by way in your examination it has been asked what functional groups are, so you can write it this way: atoms or group of atoms which replaces one or more hydrogen from the hydrocarbon, thereby changing the entire property of that particular compound, are called functional groups. मैंने आपको पहले बोला, सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ एक अल्केन है ऐसे, ठीक है सर। अब क्या हुआ, इसका मेरा एक हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से, मैं छोटा करके राइट साइड में लिख दूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है सर। मेरा ये हाइड्रोजन रिप्लेस किया किसने, OH में, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये ग्रुप ऑफ, मैंने बोला ना एटम और ग्रुप ऑफ एटम, उसमें तो क्लोरीन सिंगल एटम था, इसमें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों, इसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं। अल्कोहल फैमिली का ये मैं बाद में डिटेल में आपको बता दूं बेटा। देख लीजिए, इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, द डिफरेंस इज, सी इसमें C2H6, इसमें क्या है बेटा, C2H5OH, है ना, ऐसे भी आप बोल सकते हो, या C2H6O ऐसे भी बोल सकते हो आप। क्या हुआ, ये जो एक हाइड्रोजन था इसको रिप्लेस करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां जुड़ गया, OH ग्रुप जुड़ गया, ठीक है सर। अब इससे क्या ये दोनों सेम कंपाउंड रहेगा, नहीं सर, अब इसका इंटायर प्रॉपर्टी चेंज हो गई। ये तो अल्कोहल बन गया सर, ये क्या था, नॉर्मल अल्केन था। इन एटम्स को या इन ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या बोलते हैं सर, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। याद रखिएगा इसको। तो कैसे कैसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, क्या क्या फंक्शनल ग्रुप्स हैं, वो मैं एक एक करके यहां लिख दूं। नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऐसे, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा पढ़ा करके आपको करते हैं सर। से फंक्शनल ग्रुप्स क्या क्या हो सकते हैं। पहले हमारे पास जब भी OH ग्रुप जुड़ता है सर, हम इसको अल्कोहल्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, ये अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद X हम इसको बोलते हैं हेलोजन फैमिली का, लेकिन इसमें कोई भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, इट्स ऑल ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा CH_O, या इसको हम CHO भी डायरेक्ट लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं सर अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक। उसके बाद होता है बेटा C_O ग्रुप सिर्फ, इसको हम CO भी लिखते हैं किसी किसी जगह, इसको हम बोलते हैं सर कीटोन फंक्शनल ग्रुप। ऐसे ऐसे फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं सर। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका C_O_OH, या किसी किसी जगह COOH भी लिखा होता है, दोनों सेम है सर। इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इज इट ओके? सो अब इन ये फंक्शनल ग्रुप जब आपके कंपाउंड में मिलेंगे
तो आप इसको कैसे नेम करेंगे सर, आप इसको कैसे नेमिंग इसका स्टार्ट करोगे वो मैं आपको बता दूंगा। देख लीजिए सर यहाँ पे पहले, जब भी अल्कोहल होगा लास्ट में आपको क्या करना है, ओल करना है। लास्ट में आपको क्या करना है, नेम के लास्ट में ओल। फॉर एग्जाम्पल अगर इथेन के लास्ट में अगर OH है, इथेन है, 2 कार्बन है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर OH आ गया, तो आप क्या बोलोगे उसको, इथेनॉल बोल सकते हैं आप इसको। उसका डिटेल में आपको बता दूं, हेलोजन को आप हेलो पहले करना है, फिर करना है हेलो अल्केन या क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरो करके। जब भी आपका अल्डिहाइड ग्रुप होता है बेटा, आप अल लास्ट में लगा दीजिए। अगर 2 कार्बन के साथ है तो आप क्या बोलोगे, इथेन अल एल करके करेंगे। मैं डिटेल में बता दूं, कीटोन में आपको लास्ट में ONE ऑन करना है, ठीक। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो लास्ट में क्या करना है आपको, ओइक एसिड करना है, ओइक एसिड, OIC ओइक, ACID एसिड, लास्ट में ये करना है बेटा। अब देख लीजिए आप इसको नेमिंग कैसे करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर का। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको यहां एग्जांपल दे दूं, OH, ठीक है सर। तो OH जब भी होता है ये अल्कोहल ग्रुप का होता है, देख लीजिए अल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप इसमें, तो हम लास्ट में क्या लगा देते हैं, ओल। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, 1 2 है तो मीथेन ऑल। लेकिन क्या होता है सर, 2 वोवल यहां पे आ रहे हैं ना सर, तो हम इसको इरिडिकेट कर देते हैं ऐसे। कैसे इरिडिकेट कर देंगे हम इसको, ऐसे। तो ये क्या बन जाता है बेटा, एक्चुअल इसका नेम मीथेनॉल, मीथेनॉल। इसको हम क्या नाम देंगे, मीथेनॉल। उसके बाद है, अगर आप और एक नाम देना चाहोगे तो C डबल बॉन्ड OH, ऐसे। तो 2 कार्बन है तो क्या बोलोगे, सॉरी हमने इसको क्या बोला, सॉरी दिस इज इथेनॉल। देयर आर 2 कार्बन कंपाउंड्स ना, दिस इज इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल। नो सॉरी, दिस इज नॉट इथेनॉल, I missed the slide away. Yeah, this is ethanol. Why ethanol? Because there are 2 carbon with it, then ethanol is there. Now, here we have, this is aldehyde group. So, al should be over the last, 1, 2, ethan, then al. E को आप इरिडिकेट कर दीजिए, फिर ये क्या बना, इथेनॉल। बाकी nomenclature we will be discussing in the next lecture with chemical properties of carbon compounds. So for today it's all okay. अगर आपको कुछ confusion होगा तो WhatsApp नंबर जो मैंने आपको दिया उस पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। Thank you so much. Have a nice day.